Good morning, students. We were discussing in the previous class about the staffing. The three main elements we have discussed about the staffing is recruitment, selection, and training. So let us start with the first element of the staffing is recruitment. So आज हम recruitment के बारे में discuss करेंगे. Recruitment क्या होता है? Basically it's a positive process. We can say recruitment एक positive process होता है. And recruitment means making available persons to fill different vacant post in the organization. मतलब अपने organization में, in any organization, if you want to fill the vacancies, because it may happen like there may be some people may go out or new jobs may come up, so नया नया activities करने के लिए we may require some people, human resource requirement होती है. तो whenever we wanted to fill the requirement like jobs, it's making available persons for fill different vacant post in the organization में post fill करने के लिए we have to make available the individual persons from the market. The process what we adopt for motivating or ensuring the people to submit their applications so that selection become easy is what we call as recruitment. क्योंकि हमें अगर जनरली एग्जांपल देखें, हमारे यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है, इफ़ एट ऑल वी नीड सम पीपल टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ नोबडी हैज़ अप्लाइड फॉर इट, अगर कोई अप्लाई नहीं करता है, कोई अप्रोच नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज होंगे. सो वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल दैट पर्सन मे और मे नॉट हैव द स्किल्स. इसलिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्प्स अस इन getting more and more applications from the public. So जैसे it like encourages, it's a process where we ensure that more and more people submit the applications so that the selection process becomes easy. हम लोग आराम से सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ईजी से सेलेक्ट कर ले सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस पोस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, even though the person does not fulfill the desired qualification, or even the person does not have the proper skills to fulfill our need, to हमारे नीड को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी अनस्किल्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर लेना पड़ता है. सो टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेल्प्स अस. So simply we can say this is, as I said, it is a positive process. Recruitment, what we said here as a positive process, क्योंकि हम मोटिवेट करते हैं कि पीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा है, सो वी आर इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशंस, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए पॉजिटिव प्रोसेस, इंक्रीज करने के लिए. एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पॉसिबली मोर, we get more higher number of applicants will be applied in our organization. So this is called as a recruitment. So what are the sources for the recruitment? हमारे लिए क्या sources है recruitment के लिए? जैसे आप लोग जानते हैं कि मार्केट में अगर देखें, आपकी अगर कोई पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, पेपर में ऐड देते हैं और बाकी की मार्केट में बता देते हैं कि यहाँ पे पोस्ट खाली है तो फिलअप कीजिए. We give the information about the organization to encourage them to apply for it. But what are the various sources from which we can get these applications or get these people? कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पोस्ट के लिए हमें पर्सन्स चाहिए, जहाँ पर्सन्स हैं वहीं से हम पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं. तो देर आर टू sources are there for us. One is called internal source, the other one is as external source. सिंपल टर्मिनोलॉजी है. इंटरनल सोर्स का मतलब है कि वी आर फिलिंग दैट पर्टिकुलर वैकेंसीज और वी आर गेटिंग द पीपल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. द पीपल हु आर ऑलरेडी इन द ऑर्गेनाइजेशन and if they are applying for this, that is called as a internal. So here एक तो important है कि one thing you can remember here is the person who knows about our organization, who already have a knowledge about organization, was already working in our organization, is again recruited, again taken into another particular activity, another job, is what we call as internal source. एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है
या वी गेटिंग पीपल फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नो वेयर कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं, बाहर से लाया जा रहा है. सो लेट अस सी व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. हमारे पास इंटरनल सोर्सेस रिक्रूटमेंट क्या है? द फर्स्ट वन इज ट्रांसफर, second one is promotion, there's a third one layoff, but we don't have in our syllabus. Just for your knowledge I was taken here, but you can remove this. So we have only transfer and promotion. तो बहुत सारे चीज़ आप लोग जानते होंगे मार्केट में, जैसे ये दिस टू टर्मिनोलॉजीज आर मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर अवेयर ऑफ इट. ट्रांसफ़र और प्रमोशन के बारे में सारे लोग जानते हैं. जैसे ट्रांसफ़र का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफ़र करना, यानी मूव करना. It's a movement of an employee from one particular place to another place or from a particular job to another job. This is called as a transfer. ये हो सकता है कि एम्प्लॉय में भी वन जॉब टू अनदर जॉब को शिफ्ट होगा, या वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट. इन दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल एज in this particular case, like transfer case, there is no there is no movement of upward or downward. मतलब हम लोग उनको इंक्रीमेंट या ऐसा कुछ दे, यानी सैलरी ज़्यादा देना, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. दिस ओनली शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक जॉब से दूसरे जॉब को शिफ्ट करने के लिए हम ट्रांसफ़र कहते हैं. The second one we have got as promotion. Promotion is a kind of like a movement of an employee, a vertical movement we can say. ट्रांसफ़र जो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब सेम पोजीशन में रहेंगे, लेकिन प्रमोशन है वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, यानी डाउन लेवल से अपवर्ड. वी आर गिविंग हिम अ प्रमोट. नाउ ही इज़ ए क्लर्क, नाउ ही विल बिकम ए हेड क्लर्क. इज़ अ मैनेजर, ही विल बिकम ए he is an assistant manager, he will become a manager. So एक ऊपर मतलब अपग्रेड करते हैं, that is called as a promotion. It refers to like a shifting of an employee to a higher place, higher position. So एक position से दूसरे position को shift करना. So he is working in the same organization. So obviously this is called as like filling up the vacancy. मान के चलिए one of our employee who is working in our organization as sales representative. He was working from the long period, बहुत दिन से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. अब हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर पोस्ट खाली हो गया, मतलब मैनेजर इज़ रिजाइंड और मैनेजर पोस्ट खाली है. वी वांट टू क्रिएट ए मैनेजर पोस्ट. नाउ फॉर फिलिंग द मैनेजर पोस्ट वी कैन हायर फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट, बाहर से भी ले सकते हैं, या द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. अगर एक्स एग्जाम्पल लेंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आवर कंपनी is already got lots of experience. अगर उसका qualification भी है, good experience है, तो to motivate him we can promote to the post of manager. This is called as a promotion. So we are filling the vacancy of manager with the person who already working in our organization. This is called internal source. This is called internal source. So let us see, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स से अगर यूज़ करते हैं, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस वी हैव. अगर हम ट्रांसफ़र या प्रमोशन के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर वैकेंसीज फिलअप करते हैं, रिक्रूटमेंट सोर्स अगर यही यूज़ करते हैं, बाहर से किसी को नहीं लाते हैं, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस वी हैव. एक तो है ही विल बी गेट मोटिवेटेड. अपना ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, if you are promoting him or if you are giving him a chance of working some other area, so he will be delighted, खुश हो जाएगा और ज़्यादा वर्क करने के लिए एंथुजियास्टिक हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा. सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरे लिए कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आई एम गेटिंग बेनिफिटेड, आई एम गेटिंग प्रमोटेड, हायर सैलरी मिलने वाली है. तो दिस क्रिएट्स ए मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड एंड वर्क एफिशिएंटली. और दूसरी बात ये है, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस. ज़्यादा हमें लाइक प्रोसीजर नहीं करना है. सिंपली शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर प्लेस और शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है. सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस.
और तीसरा है देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इट्स ओनली एन ऑर्डर ऑफ, इट्स अ मैटर ऑफ ऑर्डर, इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स आर बाय द मैनेजमेंट. सो फिलिंग अप दिस प्रोसेस ऑफ इंटरनली इज़ चीपर ऑल्सो. कॉस्ट भी बहुत चीप हो जाएगा. मतलब एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाएंगे और सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, सिलेक्शन और प्लेसमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं उस एम्प्लॉय के बारे में, ज़्यादा इंटरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. इज़ वर्किंग विद अस, सो वेल नोन टू अस, सो हम जानते हैं उसके बारे में, सो हम सिलेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड अमंग दी अवेलेबल एम्प्लॉयज़, अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात मैंने किया, अगर 4-5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्हीं में से जो एंथुजियास्टिक है, हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे प्रीवियस 4-5 साल का, अगर देख लें तो सिलेक्शन ईजी है कि इसको प्रमोशन देना है. बट देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो देयर फॉर दिस. व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? लेट अस सी द लिमिटेशंस. फर्स्ट है देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट. अपने ऑर्गेनाइजेशन में नया टैलेंट नहीं आएगा. आजकल देख रहे हैं कि द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग अप. सो जो बाहर से जो आएंगे दे विल कम विद अ गुड टैलेंट एंड वी आर नॉट एंकरेजिंग द टैलेंट, वी आर यूजिंग द ओल्ड पीपल. ओल्ड टैलेंट हमारे पास जितना है उतना यूज़ कर रहे हैं. सो दिस में लाइक रिड्यूस द स्कोप फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ और इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरा है एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक. लेथार्जिक मतलब सोच लेगा कि मैं कुछ भी करूं ना करूं, 5 साल के बाद मुझे प्रमोशन मिलने वाला है. And he will be very happy sitting at the same place without efficiently working. He knows even if he does not work efficiently also, if he thinks that he will get promoted, then definitely he will become lethargic and he won't work properly. So employees may become lethargic. सोचेंगे कि कैसा भी प्रमोशन मिलने वाला है, हमें तो 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, आफ्टर certain period of time. And the spirit of competition among the employees may be hampered. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि सबको प्रमोशन मिलने वाला है, सब आगे बढ़ने वाला है. तो इंटरनल से जब रिक्रूटमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई उतना कंपटीशन फील नहीं करेगा कि मेरा एम्प्लॉई है, मेरे से सीनियर है वो, तो पहले उसको प्रमोशन मिलेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा. तो देयर इज़ नो कंपटीशन, आई नीड नॉट टू वर्क फॉर इट. सो ऐसा कोई ये नहीं रहेगा. दीज आर द लिमिटेशंस. बट स्टिल इंटरनल सोर्स जो भी है हमारे लिए, दस में भी है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू वांटेड टू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ दिस. बिकॉज जब हम इंटरनल सोर्स यूज़ करते हैं तो वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस अबाउट द कंपनी के बारे में उनको इंट्रोडक्शन नहीं देना है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. सो आर कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड and time also will be reduced. So in such situation the internal source may help us in filling the vacancies cheaper than when compared with the others. Now let us see external source. इसमें बहुत सारे external source हैं. मतलब हम कैसे बेसिकली हम फिलअप करेंगे, कैसे इंड्यूस करेंगे पीपल को कि अप्लाई करने के लिए. है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंडिकेट्स ऑन ए नोटिस बोर्ड में लगाएंगे कहीं पे, या कहीं गेट पे लगा देंगे, नोटिस चिपका देंगे, या कहीं इंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द लाइक क्या क्या चाहिए डिटेल्स, मतलब what position is required, what job position is vacant, what qualifications are required, and that salary, pay packs and everything will be displayed on the notice board, or those who look at the notice and they may apply for it. That is a direct recruitment. Casual callers. Organizations maintain certain database. Previously कोई अप्लाई किया होगा हमारे यहाँ, अपना बायोडाटा सेंड किया होगा, दैट बायोडाटास विल बी स्टोर्ड और हमारे पास रखेंगे. कोई ऐसे ही कैजुअली कॉल करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके यहाँ पोस्ट अगर खाली है तो बताइए, मेरा नाम सो एंड सो है, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ. सो द डाटाबेस विल बी स्टोर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टाइम बीइंग इफ़ यू डोंट नीड.
लेकिन जब फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होती है तो इस डाटाबेस को हम यूज़ करेंगे, द सेम पर्सन्स को हम कॉल बैक करेंगे और बुलाएंगे रिक्रूटमेंट के लिए। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। मीडिया प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज एज यू कैन सी। आजकल न्यूज़पेपर में भी एक छोटा सा पम्पलेट लगा के भेज दे रहे हैं, दैट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और कहीं होर्डिंग लगा देंगे मार्केट में, टीवी में ऐड दे देंगे, सीरियल के बीच में ऐड देंगे, या तो कहीं पे भी न्यूज़ में देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, और एम्प्लॉयमेंट पेपर है। ये सब हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट। थ्रू मीडिया वी कैन गेट द रिक्रूटमेंट। दस वन मोर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दिस सिस्टम नाउअडेज इज डिस्करेज्ड बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन अप। बट स्टार्टिंग अर्लियर ऐसे ही होता था कि आप 10th पास किए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता था, अभी भी है। अगर आप 10th पास करते हैं तो रजिस्टर करवाइए, फिर आपको एक एक्वायर करते हैं क्वालिफ़िकेशन, टाइम बाय टाइम आप अपग्रेड करते रहना। और कंपनी जब भी आप उनके लिए जॉब का रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपका डाटा लेके आपको जॉब देती है। दिस वॉज ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक, नाउअडेज इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड वी कैन से, मोस्टली बिकॉज इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ग्रोन अप हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। और कैंपस रिक्रूटमेंट, आजकल स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। कैंपस रिक्रूटमेंट में बेसिकली कंपनीज विल डायरेक्टली गो टू दी कॉलेज और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर सेलेक्टिंग द फ्रेश स्टूडेंट, दोज फ्रेश ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। वहीं इंटरव्यू करती हैं। जैसे मान के चलिए बीटेक है, बीटेक फाइनल ईयर में स्टूडेंट पहुंच गया, तो फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम से पहले ही इंटरव्यू करके सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा, पास करेंगे, देन दे टेक डायरेक्टली इनटू द कंपनी फॉर गिविंग ट्रेनिंग एज वेल एज प्लेसमेंट। बीकॉम के लिए भी होगा, कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए भी यही सिस्टम है। कोई भी हो, ग्रेजुएटेड +2 वालों के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, वहीं फ्रेश टैलेंट को वहीं इंटरव्यू करके सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ एक्सटर्नल सोर्स, दिस आर द मेन सोर्सेज व्हाट वी हैव। बट व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स? अगर हम एक्सटर्नल सोर्स देखेंगे तो क्या होगा? अगर हम बाहर एक्सटर्नल सोर्स देखेंगे तो वी कैन गेट द क्वालिफाइंग पर्सनल। सिंपली वी कैन से विल गेट क्वालिफाइड पर्सनल मिल सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायरमेंट है उस क्वालिफिकेशन बेस पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। दस वन मोर इज़ वाइडर चॉइस। बाहर मार्केट से ले रहे हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आर या बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे हमारे लिए सिलेक्शन के लिए, कि दे डी नॉट डिपेंड ऑन इंटरनल में। अगर रहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में मैनेजर के लिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अगर 4 मेंबर वर्क कर रहे हैं, मुझे अगर लेना है इंटरनल तो 4 में से एक को लेना होगा। वी हैव टू सेलेक्ट पिक 1 फ्रॉम द 4। बट सपोज इफ एट ऑल, if I go into the market, if I get from the external market, we can get plenty of applications. I have a wider choice, or will get fresh talent जो नया टेक्निकली अपग्रेडेशन वाले, नया जो एंथुजियास्टिक रहेंगे, फ्रेश टैलेंट जो नए नए आइडिया से बाहर मार्केट में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर से जो आते हैं तो द स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स। अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ वाले बाहर वालों से कम्पीट करना पड़ेगा, वरना वो जानते हैं कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में से उनको टर्मिनेट किया जाए। तो बाहर से जो एम्प्लॉय आ रहे हैं तो उनके साथ कम्पीट करने के लिए टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, उनके साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट एडवांटेजेस वी हैव यू गो विथ एक्सटर्नल, बट स्टिल वी हैव सम लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हैं? डिससेटिस्फैक्शन अमंग दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल से ला रहे हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थोड़ा नर्वस फील करेंगे, डिससेटिस्फैक्शन होगा। इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट वी आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, वी आर वर्किंग ऑन द सेम जॉब and somebody else is coming from the external and he is leading us, he is becoming ahead for us। तो ये थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ में रहेगा। और एक्सटर्नल सोर्स के लिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस होगा, क्योंकि उनको पहले सेलेक्ट करना होगा, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे,
उनको ट्रेनिंग देना होगा, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंस हियर. Experts have to be appointed. Experts should be spend time for selecting this. So ये कॉस्टली प्रोसेस है और इट्स अ लेंदी प्रोसेस. सो दिस इज़ वॉट अबाउट आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. रिक्रूटमेंट के बारे में जो सोर्सेस हैं हमारे, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. So go through these slides, go through this video, prepare the notes. Okay, see you in the next class.